मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। स्टार्ट करते हैं सेशन एंड इन दिस सेशन वी डूइंग सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर आइटमेट एग्जामिनेशन. लेट अस स्टार्ट this beautiful session. And if you're not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon, and you can also message me on Telegram at ADITYAKT and join the WhatsApp channel as well. So first question: a cat crosses over a sleeping dog at point A. The cat then reaches point B, taking 120 leaps before the dog wakes up and begins to chase it. The dog takes 4 leaps for every 5 leaps of cat. Distance covered by the cat and the dog in each leap are respectively 2.5 meters and 3.5 meters. So how many leaps will the dog take before it catches the cat? So pause the video and try to solve this question. So a dog is sleeping at a point A. ठीक है, डोगेश भाई सो रहे हैं at point A, and a cat crosses him at that point, and then cat reaches some point B after some time. When the cat reaches point B, after taking 120 leaps, the dog wakes up and begins to chase it. ठीक है, so when the dog wakes up and begins to chase the cat, the difference between cat and dog, पहले वो फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस कितना है, गैप कितना है. तो डिस्टेंस ए बी. तो बाय दैट टाइम 120 लीप्स हैव बीन टेकन बाय कैट. अब कैट की लीप्स डिफरेंट है, डॉग की लीप्स डिफरेंट है. फॉर कैट 1 लीप इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स. तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 120 into 2.5 meter, which will be equal to 300 meters. So AB distance is 300 meters. Now dog is also starting chasing cat. Okay. और फिर क्वेश्चन हमें कह रहा है that dog takes 4 leaps for every 5 leaps of cat. What does it imply? कि dog is taking 4 leaps for every 5 leaps of cat. यानी कि if cat is taking 5 leaps in some amount of time, then the same amount of time dog is taking 4 leaps. टाइम की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, बट हमें ये गिवन है कि सेम टाइम में dog is taking 4 leaps and cat is taking 5 leaps. Okay. So dog and cat, number of leaps per unit time, that is for dog it is 4, for cat it is 5, and length of one leap for dog, length per leap for a dog, that is equal to 3.5 meters, and for a cat that is 2.5 meters. So in the same time, distance covered by the dog is 4 into 3.5, which is 14 meters, and distance covered by the cat is 5 into 2.5, 12.5 meters in the same time. Okay, so in the same time, basically distance covered by the cat is 12.5, while that by the dog is 14, यानी कि 1.5 meters extra. और total distance between cat and dog initially that is 300 meters. Okay, और effectively क्या हो रहा है, ये जो 1.5 meters extra distance travel कर रहा है dog in comparison to cat, that is in 4 leaps. That is in 4 leaps. और क्वेश्चन पूछा number of leaps taken by the dog. So answer, if number of leaps is equal to n, so n leaps by dog, this will be the total distance that has to be covered, that is 300 meters divided by distance covered per leap, that is 1.5 meters extra for 4 leaps, तो 1.5 by 4. अब यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कैट एंड डॉग, की कैट और डॉग के बीच का जो डिफरेंस है वो किस अमाउंट से कम हो रहा है. तो 1.5 by 4 पर लीप, 300 divided by 1.5, which is 300 upon 3 upon 8, so 300 into 8 divided by 3, which is 800 leaps. Okay, 800 leaps will be our answer. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, दिस इज वन अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. तो इस पर्टिकुलर केस में ये अप्रोच थोड़ा सा लंबा लग रहा है, थोड़ा सा लॉन्गर लग रहा है. इजियर अप्रोच फॉर दिस केस वुड हैव बीन कि हम एज्यूम कर लेते कि नंबर ऑफ लीप्स टेकन बाय डॉग लेट अस से दैट इज इक्वल टू n. ओके, सो इन सच अ सिनेरियो कैट ने कितना लीप्स लिया होगा, कैट ने, क्योंकि सेम टाइम में डॉग इज टेकिंग 4 लीप्स एंड कैट इज टेकिंग 5 लीप्स. इज अंडरस्टैंड, कैट इज टेकिंग 5 लीप्स. सो अगर डॉग ने लेट अस से, क्योंकि n के बजाय 4n मान लेता to simplify matters, 4n are leaps taken by the dog and cat has taken 5n leaps. अब डिस्टेंस कवर्ड की बात करो, 4n leaps में डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग कितना होगा, दैट विल बी 4n into distance covered in one leap 3.5. So 4n into 3.5, that will be distance covered by the dog. And distance covered by the dog, let us say dog catches cat at this point C. So distance covered by the dog
this will be equal to AB plus BC, and AB is equal to 300 meters plus BC. BC distance क्या होगा? That is distance covered by the cat after dog has started chasing it. ठीक है, so number of leaps taken by cat will be 5n और distance per leap is 2.5. Solve कर दो इक्वेशन को. तो 4 into 3.5 which is 14n, that is equal to 300 plus 12.5n. So यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा 1.5n is equal to 300. So n is equal to 200. बस लास्ट में ध्यान रखना है कि n हमारा 200 है, बट क्वेश्चन पूछ रहा है 4n की वैल्यू कि हमने एज्यूम किया है डॉग इज टेकिंग 4n स्टेप्स, तो आंसर विल बी 4n व्हिच इज इक्वल टू 800. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A total of 318 malfunctioning smart watches are distributed equally among n technicians. The number of watches left undistributed is 7 less than the number of technicians. If every technician was given x watches, then find the sum of all the possible values of x. Total watches have 318 that are malfunctioning and they are distributed equally among n technicians. And number of watches left undistributed is 7 less than the number of technicians. Okay, so let us say the number of technicians, that is equal to n, and the number of watches distributed to every technician, that is x, so n into x. Okay, plus there are some watches which are left undistributed and that is 7 less than number of technicians, and this is equal to n minus 7, and x plus n minus 7, this is equal to 318. So nx plus n, this will be equal to 325, and hence n into x plus 1, this is 325. तो इक्वेशन तो बन गया हमारा. अब फर्दर कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होंगे इस केस में? 325 इज बेसिकली 65 into 5 और 13 into 25, 13 into 5 स्क्वायर. ओके, इतने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं. नंबर ऑफ फैक्टर्स देख लो, 13 to the power 1 into 5 to the power 2. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 1 plus 1, क्योंकि 13 की पावर 1 है, मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power 2 है, तो 2 plus 1 विच इज इक्वल टू 6 फैक्टर्स इन टोटल. कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? इट कुड बी 5, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 into 325 और वाइस वर्सा 325 into 1, और इट कुड बी 5 into 65 और 65 into 5 और लास्टली 25 into 13 और 13 into 25. सो देयर विल बी टोटल 6 केसेस, 6 पॉसिबल केसेस. ठीक है, बट कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होंगे. कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होंगे? फॉर एग्जांपल कि नंबर ऑफ टेक्नीशियंस n है, नंबर ऑफ वॉचेस x है, नंबर ऑफ वॉचेस लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड इज 7 लेस देन द नंबर ऑफ टेक्नीशियंस. सो इफ n minus 7, this must be some positive value. If number of watches left undistributed that is 7 less than number of technicians, यानी कि n must be greater than 7, है कि नहीं? n हमारा greater than 7 होना पड़ेगा. क्या क्लियर है? So n cannot be equal to 1. If n has to be greater than 7, so n cannot be equal to 1, cannot be 5, 1 और 5 नहीं हो सकता. So n can be 13, 13 possible है. n is equal to 13, x plus 1 equal to 25, और n can be 25, then x plus 1 equal to 13, और n can be 65, then x plus 1 is equal to 5, और n can be 325, then x plus 1 is equal to 1. मेक सेंस? ठीक है, क्या लास्ट वाला केस पॉसिबल होगा? 5 और 1 तो पहले एलिमिनेट हो गया. क्या लास्ट वाला केस पॉसिबल होगा? क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x का सम. सो x क्या वैल्यू आएगा? x plus 1 निकाला हमने, ये ध्यान देना है लास्ट में कि x नहीं वैल्यू आया, ये x plus 1 है. सो x विल बी 25 minus 1 24 और 12 और 4 और एट लास्ट 1 minus 1 0. ठीक है, सो लास्ट केस में क्या आ रहा है कि नंबर ऑफ वॉचेस डिस्ट्रीब्यूटेड among n technicians that is 0. So that should also not be included in this case. ठीक है, 0 वॉचेस डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं की. So effectively these are the possible cases 24, 12 and 4. So answer will be 24 plus 12 plus 4 and hence that is equal to 40. Okay, answer आ जाएगा हमारा 40 for this case. Okay. Fair. Next question. From a taxi stand, 2 cabs start at an interval of 24 minutes, both traveling in the same direction at a speed of 60 km/h. A motorbike coming from the opposite direction towards the taxi stand meets the 2 cabs at a time interval of 15 minutes. Find the speed of the motorbike.
There are two cabs that are starting at an interval of 24 minutes. Both are traveling in the same direction. Speed है 60 दोनों का. Motorbike is coming from the opposite direction towards the taxi stand and motorbike meets the two cabs at a time interval of 15 minutes. Scenario क्या बनेगा? So पहले हमारी ये cab start हुई. Let us say that is cab C1 from the taxi stand. Then it starts traveling. And let us say it reaches some point. After 24 minutes, let us say it reaches some point. ठीक है? Send that at that exact moment, cab C2 starts from taxi stand. So distance between these two cabs क्या होगा? Distance between the cabs will be distance traveled by the first cab in 24 minutes. Okay, and that distance will be equal to 24 by 60 into 60, which is 24 kilometers. So gap between cab C1 and cab C2, the two cabs, that is 24 kilometers. और ये दोनों cabs का speed same है, both are going in the same direction. तो ये जो distance है, distance will always remain constant. Distance between the cabs, this will always remain constant. है कि नहीं? क्योंकि दोनों का speed same है. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा. अब जो मोटर बाइक आ रहा है सामने से, let us say speed of the motorbike that is equal to s, and motorbike is coming from the opposite direction. So after a while it will meet or it will cross cab 1. cab 1 को क्रॉस करेगा, फिर उसके कुछ टाइम के बाद में it will cross cab 2. Isn't it so? But between those two instances, जब ये पहले cab 1 को क्रॉस करेगा और फिर जब ये फर्दर cab 2 को क्रॉस करेगा, between these two instances distance traveled by the motorbike क्या होगा? Since the distance between these two cabs is exactly the same, irrespective कि किस पॉइंट पे हम कैच कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, सो एट ऑल टाइम्स दैट डिस्टेंस इज 24 किलोमीटर्स. तो जब बाइक क्रॉस करेगा दोनों कैब्स को, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटर बाइक विल बी इक्वल टू 24 किलोमीटर्स ओनली. Isn't it so? क्या ये क्लियर है? ठीक है, बट क्योंकि बाइक और कैब दोनों ट्रैवल कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, बोथ आर ट्रैवलिंग, Isn't it so? दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम अपनी स्पीड कंसिडर करेंगे तो हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कंसिडर करेंगे, क्योंकि बाइक ने अकेले डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है जो 24 किलोमीटर्स का है. ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में बाइक के अलावा कैब का भी रोल है. कैब का भी रोल है, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे ही बाइक ने, फॉर एग्जाम्पल व्हेन बाइक क्रॉस्ड कैब 1, बाइक वॉज एट दिस पोजिशन. अब इसके बाद में क्या होगा, कैब 2 एग्जैक्टली 24 किलोमीटर्स पीछे होगा. अब इसके बाद में कैब 2 इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60, बाइक इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ एस, और ये जो डिस्टेंस है 24 किलोमीटर्स, दोनों साथ में मिलकर ट्रैवल करेंगे. ठीक है, दोनों साथ में मिलकर ट्रैवल करेंगे, अकेला बाइक ट्रैवल नहीं करेगा. तो बाइक प्लस कैब 2 का डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टोटल टुगेदर दैट विल बी 24 किलोमीटर्स, और दोनों साथ में मिलकर ट्रैवल कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड इन दिस केस विल बी समेशन ऑफ द स्पीड्स 60 प्लस एस. ओके, टाइम टेकन है 15 मिनट्स का. तो अब पहले सिनारियो को, फर्स्ट सिनारियो और सेकेंड सिनारियो को कंपेयर करते हैं. In both cases distance traveled is 24 kilometers. First case में speed of the cab was 60. Second case में speed of cab plus bike that is 60 plus s. तो distance same है. तो distance is same, यानी कि time and speed will be in reciprocal proportion. अब time की वैल्यूज आ रही है हमारी 24 and 15 which is as a ratio 8:3. तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड हमारी फर्स्ट केस में 24 के केस में है 60 और सेकंड केस में है s plus 60. तो रेशियो ऑफ स्पीड विल बी 3:8. एक सेकेंड, 8:5 होगा, 8:5 होगा, तो हमारा स्पीड का रेशियो आ जाएगा 5:8. तो 60 अपॉन s plus 60, दिस इज 5/8. ओके, या तो ऑब्जर्व कर लो इस मोमेंट पे कि 5 यूनिट्स हमारा 60 के बराबर है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 12, और s plus 60 8 यूनिट्स, यानी कि s इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, यानी कि s विल बी इक्वल टू 36. अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 8 into 60 which is 480, that is equal to 300 plus 5s, and hence s is equal to 36. So 36 km per hour will be our speed of the motorbike. सिंपली ऐसे केसेस में हमें इतना ही समझना था
कि डिस्टेंस बिटवीन गैप बिटवीन कैब 1 एंड कैब 2 दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कैब 1 इन 24 मिनट्स, और 24 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 24 इंटू 60 अपॉन 60 विच इज इक्वल टू 24 किलोमीटर्स. सो दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन कैब 1 एंड कैब 2. जब जैसे ही कैब 1 को क्रॉस करेगी हमारी मोटर बाइक, उसके बाद में द मोटर बाइक इज टेकिंग 15 मिनट्स, और इन दैट 15 मिनट्स कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मोटर बाइक, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कार. रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू s प्लस 60. सो डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों ही केस में 24 किलोमीटर डिस्टेंस क्रॉस हुआ है. एक केस में अकेले कार ने ट्रैवल किया, कैब ने ट्रैवल किया. सेकंड केस में कैब प्लस मोटर बाइक बोथ हैव ट्रैवल्ड दैट डिस्टेंस. सो बस डिस्टेंस का सेम होने के केस में टाइम एंड स्पीड आने से प्रोपोर्शनल. टाइम का रेशियो 8:5, स्पीड का रेशियो का 5:8. सॉल्व कर लोगे, ठीक है. Next question. If A is a 3 cross 3 matrix such that A cube is equal to 0, and A multiplied by A, this is equal to 0. A into A into A, this is equal to 0. And A square is not equal to 0. यानी कि A into A, this is not equal to 0. Because जैसे हमारा A cube 0 हो जाएगा तो अब इसके बाद में A to the power 4 भी 0 होगा. फर्दर A मल्टीप्लाई करोगे तो जब मैट्रिक्स हमारा 0 हो ही गया तो अब मल्टीप्लाइड बाई any value that will also be 0. यानी कि अब A to the power 4 will also be 0. A to the power 5 will also be 0. Effectively A to the power n will be equal to 0 if n is greater than equal to 3. And question is saying find the determinant of 2 times I plus A to the power 10 minus 10 times 10 into 2A plus 9A square. Okay, सॉल्व कर लेते हैं. सो I plus A to the power 10, इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल की तरह ही करोगे, ठीक है. बाइनोमियल में क्या होगा कि इन केस ऑफ बाइनोमियल, सो 1 plus x to the power n, this is equal to n C0 1 to the power n और 1 to the power n which is equal to 1 only, ठीक है. सो 1 to the power n plus n C1 into 1 to the power n minus 1 x to the power 1 plus n C2 1 to the power n minus 2 into x to the power n minus, एक सेकेंड गड़बड़ कर रहे हैं. एन सी वन 1 to the power, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री इंटू 1 to the power n minus 3 x cube and so on NCR 1 to the power n minus r x to the power r and at last NCN 1 to the power 0 x to the power n. ठीक है, सिंप्लीफाई होकर बेसिकली NC0 क्या है, दैट इज 1 ओनली. सो 1 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन टिल NCN x to the power n. ओके, इस केस में क्या है, I प्लस A to the power 10, और I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जब मल्टीप्लाई भी करेंगे अल्टीमेटली क्या आएगा 10C0 इंटू I to the power 10, और I क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो I स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू I क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू I, सिमिलर टू 1, ठीक है. सो I to the power n इज ऑल्सो इक्वल टू I. सो 10C0 I to the power 10 प्लस 10C1 I to the power 9 इंटू A to the power 1 प्लस 10C2 I to the power 8 A square plus 10C3 I to the power 7 A cube and so on. अब यहाँ पे गिवन है में A क्यूब इज इक्वल टू 0 और फर्दर A to the power 4 A to the power 5 ये सारे टर्म्स 0 होंगे. यानी कि इफेक्टिवली जैसे ही A क्यूब पे पहुंचे हम तो ये टर्म तो 0 हो गया, बिकॉज A क्यूब इज 0, तो कुछ भी मल्टीप्लाई किया उसका फर्क क्या पड़ता है, और इसके बाद के सारे टर्म्स भी इक्वल टू 0 होंगे, इक्वल टू 0 होंगे. सो द ओनली कंसर्न विल बी दीज टर्म्स 10C0 I to the power 10 which will be equal to I only plus 10C1 into I to the power 9. So 10C1 is 10, I to the power 9 is equal to I or into A plus 10C2 is equal to 10 into 9 by 2 45 into I to the power 8 तो I ही रहेगा और A स्क्वायर. इफेक्टिव एक्सप्रेशन बन गया हमारा I plus 10A क्योंकि I into A is equal to A only plus 45 A स्क्वायर. ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है 2 times I plus A to the power 10 minus 10 times 2A plus 9A square. So this will be, effectively this expression will be equal to 2 times of I plus 10A plus 45A square minus 10 times of 2A plus 9A square. So this is 2I plus 20A plus 90A square. ठीक है, देखो A स्क्वायर ये सारे के सारे मैट्रिसेस हैं, बट इसके बाद जो टर्म्स है वो तो स्केलर्स हैं, कांस्टेंट है तो उनको आपस में इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है.
ठीक है. सो सिमिलरली माइनस 10 इंटू 20a minus 90a square. So 20a and 20a gets cancel out, 90a square and 90a square gets cancel out. तो रिजल्ट हमारा आ गया 2i. और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ 2i. What will be the value of this resulting determinant ultimately? What will be the value of resulting determinant 2i? Okay. So determinant of i, identity matrix का determinant का value is equal to 1. And if we have to find out the value of determinant of ki, k times I, then the answer is k to the power n into I, where n is order of the matrix. Order of matrix. So since this is a 3 cross 3 matrix, तो order हमारा क्या है? Order is 3. Order is 3. So in this case हमारा value आ जाएगा 2 to the power n times identity matrix का value which is equal to 1 only, और n is equal to 3, तो 2 cube into 1 which is equal to 8. आंसर आ जाएगा 8. ओके. 3 क्रॉस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का शक्ल कैसा होगा? एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल, ऑल अदर एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0. और 2 टाइम्स आई क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2. अब 0 को तो कैसे ही मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली 0 ही रहने वाला है. तो बस डायगोनल एलिमेंट्स ही रहेंगे हमारे, विच विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2. और अब देख सकते हो प्रोडक्ट हमारा क्या है, क्योंकि मोस्टली टर्म्स तो 0 ही है, तो सिर्फ और सिर्फ काम का वैल्यू क्या होगा हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2. एक सेकंड, ये 2 क्यों लिख दिया? एक एडिशन, दिस इज 0 ओनली. So matrix result will be equal to 8 to q. Okay. सॉरी, डिटरमिनेंट का रिजल्ट, नॉट मैट्रिक्स का रिजल्ट. ठीक है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट का वैल्यू विल बी इक्वल टू 8. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the sum of all the roots of the equation e to the power 2x minus 11 e to the power x minus 45 times e to the power minus x plus 81 upon 2 that is equal to 0, और इसमें sum of all the roots is log of p on the base e, then value of p क्या होगा? चाहिए हमको sum of all the roots. ठीक है, इक्वेशन क्या है? e to the power 2x minus 11 e to the power x minus 45 e to the power minus x plus 81 by 2. तो एक केस में हमारा आ रहा है e to the power minus x which is 1 upon e to the power x. तो मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई e to the power x. e to the power x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन इफेक्टिवली बन जाएगा e to the power x into e to the power 2x which will be e to the power 3x minus 11 times e to the power 2x minus 45 plus 81 by 2 times e to the power x. This is equal to 0. Okay, e to the power 3x minus 11 times e to the power 2x plus 81 by 2 times e to the power x minus 45. This is equal to 0. हमें चाहिए sum of all the roots. अब यहाँ पे x की 3 वैल्यूज मिलेंगी. ठीक है, x की 3 वैल्यूज मिलेंगी. x can be equal to alpha, beta and gamma. Let us say alpha, beta and gamma are the roots. So we need to find out alpha plus beta plus gamma का वैल्यू क्या होगा. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग. ओके, बट हमारा जो इक्वेशन है वो e टू द पावर x के फॉर्म में है, वो x के फॉर्म में तो नहीं. x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर होता तो ज़्यादा आसान होता. ठीक है, सो पहले तो कुछ बेसिक्स देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक इक्वेशन में अगर हमारे रूट्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, तो इक्वेशन क्या होगा? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा. दिस इज इक्वल टू 0. अब एक्सपैंड करो, मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को. सो इक्वेशन आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर. भाई तुमने एक केस में अल्फा लिया और बाकी 2 केसेस में एक्स लिए, तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, सिमिलरली माइनस बीटा स्क्वायर, सिमिलरली माइनस गामा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा. दिस इज इक्वल टू 0. तो दिस इज आवर इक्वेशन. ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा हमारा. क्लियर? अब कंपेयर करो इस इक्वेशन को, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 0. तो हमारा जो इक्वेशन में निकाला जब रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब द लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू 1, तो पहले लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बना लो, कंपैरिजन आसान हो जाएगा. सो डिवाइड बाई ए, तो एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस डी अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू 0. So now comparison is easier.
कंपेरेटिवली। ठीक है, सो अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का गामा, और यहाँ पे आ रहा है प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, और सम ऑफ रूट्स इज माइनस ऑफ बी बाई ए, जैसे क्वाड्रेटिक में होता है वैसे यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सिमिलरली अब यहाँ पे तो कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है दोनों का। ठीक है, सो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा दिस इज इक्वल टू सी बाई ए, सेकेंड केस। एंड थर्ड सिनारियो डी बाई ए दिस इज इक्वल टू, और अल्फा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई ए, माइनस ऑफ डी बाई ए। ठीक है, ध्यान रखना है इसको हमेशा कि साइन हमारे क्या होंगे अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पावर 4 भी होगा तो भी हमारी कहानी ऐसे ही बनेगी। ठीक है, अगर पावर 4 हुआ तो एक्स टू द पावर 4 माइनस सम ऑफ ऑल द रूट्स सिग्मा अल्फा टाइम्स एक्स क्यूब प्लस सिग्मा अल्फा बीटा, दो दो का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा बीटा गामा एक्स, और प्लस सिग्मा सिग्मा तो नहीं आएगा, चार रूट्स हैं अल्फा, क्योंकि चार ही रूट्स हैं, चारों का प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन बनेगा हमारा इन केस ऑफ पावर 4। ओके, अब इक्वेशन में चलते हैं। हमारी इक्वेशन है e टू द पावर 3x माइनस 11 टाइम्स e टू द पावर 2x प्लस 81/2 e टू पावर x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब आसान करने के लिए लेट अस अज्यूम कि e टू द पावर x इज इक्वल टू t मान लेते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगा t क्यूब माइनस 11 t स्क्वायर प्लस 81/2 t माइनस 45 दिस इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि ताकि चीज़ें आसान हो जाए, वरना बाद में फिर से हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसे ही लिखा रहना ताकि कोफिशिएंट t क्यूब का हमारा 1 रहे। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए सम ऑफ रूट्स, बट सम ऑफ रूट्स हमें चाहिए तब जबकि वैल्यूज हम x की ले रहे हो। भाई इफ अल्फा इज x1 बीटा इज x2 गामा इज x3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 हमें x की वैल्यूज का सम चाहिए। यहाँ पे जो वैल्यूज है t की हम देखेंगे t के केस में, तो t इज इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, यहाँ पे जब हमें 11 मिलेगा तो दिस 11 इज सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जहाँ पे कि t हमारा अननोन है। ठीक है, सो दिस 11 इज बेसिकली इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3, और दिस इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा प्लस e टू द पावर बीटा प्लस e टू द पावर गामा, दिस इज इक्वल टू 11। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नहीं है, दिस इज e टू द पावर अल्फा प्लस e टू द पावर बीटा प्लस e टू द पावर गामा। ओके, सेकंड सिनेरियो जबकि हम 81/2 ले रहे हैं, तो ये दो दो का प्रोडक्ट है कि दिस इज e टू द पावर अल्फा इनटू e टू द पावर बीटा प्लस e टू द पावर बीटा इनटू e टू द पावर गामा प्लस e टू द पावर गामा इनटू e टू द पावर अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू 81/2। और लास्ट केस में जो वैल्यू आ रहा है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ t, so that will be e to the power alpha into e to the power beta into e to the power gamma, which is basically equal to e to the power alpha plus beta plus gamma, and this is equal to 45। तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू इस इक्वेशन से ही मिलेगा जहाँ पे प्रोडक्ट और रूट्स मिल रहा है। लॉग ले लो यहाँ पे, लॉग ऑन द बेस ई ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ 45 ऑन द बेस ई दिस विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। So answer will be that this should be equal to log of p on the base e, and hence p is equal to 45 आ जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन x क्यूब प्लस 2r प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज -2 एज वन ऑफ द रूट्स। तो इफ द अदर टू रूट्स आर रियल देन मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ r क्या होगा? मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ r क्या होगा इस केस में? -2 is one of the roots, so if -2 is one of the roots, in that case x plus 2 इंटू समथिंग होगा ये इक्वेशन अल्टीमेटली। ब्रेक कर सकते हैं, एक्स प्लस टू से डिवाइड कर लेते हैं और देख लेते हैं उसके बाद क्वाड्रेटिक बनेगा, और फिर क्वाड्रेटिक पे सॉल्व कर लेंगे फाइनली। ओके, तो एक्स प्लस टू से डिवाइड कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो एक तो मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, पहले उससे कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उसके बाद में सिंथेटिक डिवीजन भी देख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2r प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सो एक्स प्लस 2 बनाना है एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, सो एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, सो दिस विल कैंसिल आउट, 2r प्लस 1 माइनस 2 विल बी 2r माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर
plus 4r minus 1 into x. Now multiply by 2r minus 1 into x. So plus 2r minus 1 into x. This will be 2r minus 1 into x square plus 2 into 2r minus 1, which will be 4r minus 2 times x. Again subtract. This part is getting cancelled out. 4r minus 1 minus 4r minus 2. This will be minus x. 4r minus 1 minus 4r minus 2. तो minus 4r plus 2 हो जाएगा, तो plus x हो जाएगा, और फिर plus 2 भी आ गया, x plus 2. So effectively plus 1. So यहाँ पे बच जाएगा x plus 2. अल्टीमेटली रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा. एवरीथिंग विल गेट कैंसल आउट. तो इक्वेशन हमारा हो गया x plus 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2r minus 1 इंटू x plus 1. ओके. अच्छा, कभी भी अगर हम किसी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, किसी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं विद अ लीनियर एक्सप्रेशन, जैसे इस केस में x माइनस 2 हमारे रूट्स है, तो x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं. तो इफ यू आर डिवाइडिंग बाई ए एक्स प्लस बी, किसी पॉलिनोमियल को, ठीक है, x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n माइनस 1 इंटू सम कॉन्स्टेंट a प्लस b इंटू x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन. ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं विद ए एक्स प्लस बी विच इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, तो इन दैट केस हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं फटाफट से. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन. तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज इक्वल टू 1, देन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2r प्लस 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज 4r माइनस 1. अगर बीच में फॉर एग्जांपल कि x का कोफिशिएंट नहीं होता तो वहाँ पे 0 मेंशन करते, ये भूलना नहीं है, वहाँ पे 0 मेंशन करते. ठीक है, 4r माइनस 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल टू 2. ओके, और डिवाइड कर रहे हैं हम x प्लस 2 से, और माइनस 2 इज द रूट, तो माइनस 2 लिख दो यहाँ पे. ओके, नाउ 1 को वैसा का वैसा 1 लिख दो. मल्टीप्लाई माइनस 2 बाई 1, तो माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, माइनस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2r प्लस 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2r माइनस 1. ठीक है, एक सेकंड, ये 1 नीचे लिखेंगे, सो 1 का वैसा ही लिख देंगे, तो 1 आ गया. माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस टू यहाँ पे लिखा. ठीक है, फिर 2r प्लस 1 माइनस 2 दैट इज 2r माइनस 1. ओके, नाउ मल्टीप्लाई माइनस 2 विद 2r माइनस 1, so that will be minus 4r plus 2, 4r minus 1 minus 4r plus 2. तो ये रिजल्ट हमारा क्या आ गया, दिस इज प्लस 1. नाउ मल्टीप्लाई माइनस 2 विद प्लस 1, so that is minus 2. 2 minus 2 is 0. अभी जो फर्स्ट 3 है, दिस इज अवर कोशेंट पॉलिनोमियल, और जो एंड में रिजल्ट आ रहा है दैट इज अवर रिमाइंडर विच इज 0 इन दिस केस, बिकॉज कंप्लीटली डिवाइड बाय रूट है. अगर रूट नहीं होता तो लास्ट में रिमाइंडर आता. ठीक है, तो लास्ट में रिमाइंडर आ रहा है. इक्वेशन क्यू एक्स क्या होगा हमारा आफ्टर डिवाइडिंग, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि स्टार्ट हमने एक्स क्यूब से किया था, एक्स क्यूब था इक्वेशन में, दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. दिस इज योर क्यू एक्स और रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा है. तो बहरहाल इक्वेशन हमारी होगी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब एक रूट तो हमारा एक्स इक्वल टू माइनस 2 है. क्वेश्चन कह रहा है अदर 2 रूट्स आर ऑल्सो रियल. इफ अदर 2 रूट्स आर रियल, यानी कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी हैविंग रियल रूट्स. अगर रूट्स रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तभी तो रूट्स रियल होंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 2r माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 4r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. प्रोडक्ट आ रहा है 12 और डिफरेंस आ रहा है 4 का 6 एंड 2, तो 4r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 2r माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज 2r इंटू 2r माइनस 3. तो 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 3 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा r में, और क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से हमें मिलेंगे r के. r कैन बी इक्वल टू माइनस हाफ और 3/2, तो माइनस 1/2 एंड 3/2. एंड सिंस हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इधर
इट विल बी पॉजिटिव व्हेन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2. देन अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि सारे केसेस में हमारा जो पावर है दैट इज ऑड. तो क्लियरली हमारा रिजल्ट होगा कि इधर r इज लेस देन इक्वल टू 1 - 1/2 और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2. Okay. Question is asking minimum possible non-negative integer value of r. Non-negative, it has to be r has to be greater than equal to 0. Minimum value of r that is greater than equal to 0. तो या तो r हमारा लेस देन इक्वल माइनस है, वहां से तो सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी, और r इज ग्रेटर इक्वल टू 3/2. सो मिनिमम वैल्यू दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 3/2 एंड इंटीजर विल बी इक्वल टू 2. Minimum value of r will be equal to 2 in this case. Okay. ठीक है. Next question. In a post office, there are three different stamps of denominations rupees 3, rupees 7, and rupees 11. So, which of the following total amounts cannot be achieved by buying exactly 60 stamps? Now, pause the video और थोड़ा सा टाइम लो, सोचने की कोशिश करो. अच्छा सवाल है. कैसे सॉल्व करोगे, कि कैसे फाइंड आउट करोगे विच ऑफ द वैल्यूज कैन नॉट बी अचीव्ड बाई बाइंग एग्जैक्टली 60 स्टैम्प्स. यहाँ पे कि हमारे स्टैम्प्स की वैल्यूज है रुपीज 3, रुपीज 7 एंड रुपीज 11. तो सम स्टैम्प्स मे बी ऑफ रुपीज 3, सम स्टैम्प्स मे बी ऑफ रुपीज 7, सम स्टैम्प्स मे बी ऑफ रुपीज 11. और देखो क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं है कि हर एक टाइप का कम से कम एक स्टैम्प परचेज करना है, तो वो कंडीशन नहीं है. ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ऑल 60 स्टैम्प्स आर ऑफ वन डिनोमिनेशन ओनली, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, और कैन बी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिनोमिनेशंस इन टोटल 60, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है. तो यहाँ पे अजम्पशन तो ऐसा नहीं है कि सारे टाइप से होने ही चाहिए, बट इन द एंड क्या क्या वैल्यूज हैं जो कि पॉसिबल हो सकती हैं और कौन कौन सी वैल्यूज कैन नॉट बी अचीव्ड बाई बाइंग दीज कॉम्बिनेशंस. कैसे सॉल्व करोगे. अब देखो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, जैसे हमारे जो स्टैम्प्स हैं दोज आर ऑफ रुपीज 3, रुपीज 7 एंड रुपीज 11. सो ऑल स्टैम्प्स आर इन ऑड वैल्यूज. सारे के सारे जो डिनोमिनेशंस हैं दोज आर ऑड. इजंट इट सो कि सारे के सारे डिनोमिनेशंस हमारे ऑड वैल्यूज में, और टोटल स्टैम्प्स हमारे कितने चाहिए, 60 चाहिए, 60 चाहिए. तो जो सम आएगा हमारा दैट विल बी इवन ओनली. सम इवन ही होगा, क्योंकि ऐसे एज्यूम करो कि मान लिया हमने टोटल ए स्टैम्प्स of rupees 7 are purchased and B stamps of rupees 11 are purchased. In that case, 60 minus A plus B will be number of stamps purchased of rupees 3. तो टोटल हमारा सम कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो रेस्पेक्टिव से. 3 इंटू 60 माइनस ए प्लस बी दैट इज 180 माइनस 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस 7a प्लस 11b. दिस विल बी टोटल सम ऑफ स्टैम्प्स, और ये वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 3a प्लस 7 है, सो 180 प्लस 4a माइनस 3b प्लस 11b प्लस 8b. तो दिस इज इवन, क्लियरली इवन आ रहा है. तो यानी कि टोटल जो वैल्यू हमारा वो ऑड तो नहीं हो सकता. यानी कि ऑप्शन थर्ड और फोर्थ, रुपीज 321 है रुपीज 423, दैट इज नॉट पॉसिबल. ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारा. ठीक है. क्लियरली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. 180 प्लस 4a प्लस 8b दैट इज क्लियरली इवन. तो हमारा जो टोटल सम है वो कभी भी ऑड नहीं हो सकता. ठीक है, वो ऑड नहीं हो सकता. एक और बात कि 180 प्लस 4 टाइम्स a प्लस 2b आ रहा है, और दिस टोटल सम इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, इवन भी है एंड मल्टीपल ऑफ 4 भी है, 4 का मल्टीपल भी है. तो 200 पॉसिबल है, 320 पॉसिबल है, क्योंकि ये वैल्यूज हमारी 180 से लार्जर है. ठीक है. लिमिट क्या होगा हमारा, 180 से लार्जर वैल्यू आ रही है. ठीक है. मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल सम क्या हो सकता है, व्हेन a प्लस 2b, भाई ए और बी दोनों को जीरो कर दो, मिनिमम तो 180 आ जाएगा, उसमें तो कोई सोचना ही नहीं है. मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जबकि सारे के सारे स्टैम्प हम लार्जेस्ट पॉसिबल डिनोमिनेशन के लिए 11 इंटू 60, सो b इक्वल टू 60 हो जाए. सो इन दैट केस आ जाएगा सम हमारा 660. ओके. तो मिनिमम इज 180, मैक्सिमम इज 660. उसके बीच में तो सारी सारी वैल्यूज हैं. रुपीज 534 पॉसिबल है क्या, बिकॉज 534 दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो ना तो थर्ड पॉसिबल है, ना फोर्थ पॉसिबल है, ना फिफ्थ पॉसिबल है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर पॉसिबल. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ओके. ऑप्शन बी हमारा
इस केस में आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ₹200 के केस में, सो इफ दिस इज इक्वल 200 मान लिया, सो इन दैट केस इक्वेशन का बनेगा a+2b, दिस इज इक्वल टू 200 माइनस 180, 20/4 5, a+2b इज इक्वल टू 5। ओके, सो इधर a इज इक्वल टू 1 ले लिया, b इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो 1+4 5 हो गया। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है यहाँ पे? a इज इक्वल टू 5 हो गया, b इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि b 0 भी तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो दीज टू कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। तो मल्टीपल सॉल्यूशंस है 200 के केस में। ऐसे 320 ले रहे हैं, सो इसको इक्वल टू 320 कर दिया, तो उस केस में 4 इंटू a+2b इज इक्वल टू 140, तो a+2b इज इक्वल टू 35। तो इधर a इज इक्वल टू 35, b इज इक्वल टू 0, और a का कोफिशिएंट, a का वैल्यू चेंज करेगा 2 से, तो 35 माइनस 2 33 हो गया, और b का वैल्यू चेंज करेगा a के कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि 1 35 33 एंड 1, और देन 31 एंड 2 29 एंड 3 एंड सो ऑन। लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? 2b इक्वल टू 35, लार्जेस्ट वैल्यू 17 हो सकता है। तो इफ दिस इज 17, दिस विल बी इक्वल टू 1। दीज आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। बट हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया था कि कैन नॉट बी अचीव, कौन कौन से केसेस अचीव नहीं हो सकते, तो वो तो केसेस हमारे क्लियरली ऑप्शन 3, 4 एंड 5 हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो जब भी हम ऐसे केस में टोटल सम कर रहे हैं तो डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि हमने 3 तरह के देखो स्टैम्प्स परचेज किए हैं, 3 डिनोमिनेशन हमारी ₹3, ₹7 एंड ₹11। तो ऐसे सोचो कि अगर सारे के सारे स्टैम्प्स हमने ₹3 के परचेज किए होते तो कितना अमाउंट बनता 60 इंटू 3 180 का, 180 का। अब जितने स्टैम्प्स ₹7 के परचेज किए हैं, तो हर एक स्टैम्प पे हम ₹4 ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो टोटल स्टैम्प्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 180 प्लस 4a बिकॉज ऑफ a नंबर ऑफ स्टैम्प्स परचेज ऑफ ₹7। अब अगर b नंबर ऑफ स्टैम्प्स में ₹11 के परचेज किए, तो हर एक पे 3 से ₹8 ज़्यादा खर्च किया है। सो हमारा टोटल काउंट क्या हो जाएगा? इफ देयर आर a स्टैम्प्स ऑफ ₹7 एंड b स्टैम्प्स ऑफ ₹11, 180 तो टोटल होता अगर हमने सारे के सारे ₹3 के परचेज किए होते, बट a स्टैम्प्स ऑफ ₹7 का, सो 180 प्लस 4a, b स्टैम्प्स ऑफ ₹11 के, तो 180 प्लस 4a प्लस 8b, दैट इज द टोटल नंबर। क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक है, कि डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्वेश्चन, उसके लिए इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे ये 7 के ए है, 11 के बी है, तो 180 प्लस 4a प्लस 8b। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बिलो इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू? 1/3, 5/9, 19/27 एंड 65/81। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो पहले 4 टर्म्स हमें मेंशन है, 1/3, 5/9, 19/27 एंड 65/81। ओके, बेस हमारा आ रहा है 3, 9, 27, 81। ओके, विच इज 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 to the power 4। और न्यूमरेटर पे आ रहा है 1, 5, 19 एंड 65। तो अगर गैप देखें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, सो फर्स्ट केस में गैप आ रहा है 2 का, 3 माइनस 1, 2 का गैप आ रहा है। सेकंड केस में 9 माइनस 5, 4 का गैप आ रहा है। थर्ड केस में 8 का गैप आ रहा है, 27 माइनस 19। और फोर्थ केस में 81 माइनस 65, 16 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको कि 1/3 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2/3, 5/9 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 5/9। ठीक है, 19/27 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 8/27 एंड देन 1 माइनस 16/81। और इस तरह से लिखेंगे तो हमें पूरा इक्वेशन मिल जाएगा, पूरे सारे के सारे टर्म्स जनरल टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे अगर ये सीधे नहीं लिख पाते तो भी हम ये तो लिख ही सकते थे कि अगर गैप हमारा 2 का आ रहा है तो दिस कैन बी रिटन एज कि डिनोमिनेटर हमारा आ रहा है 3 और न्यूमरेटर आ रहा है हमारा 3 माइनस 2। सेकंड केस में डिनोमिनेटर आ रहा है 9, न्यूमरेटर आ रहा है 9 माइनस 4 इन जनरल। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या आ जाएगा हमारा? जनरल टर्म फॉर दिस सीक्वेंस विल बी इक्वल टू, अगर हम सेकंड सिनेरियो में देखें, सो या फर्स्ट केस में जैसे हमने देखा ऑब्जर्व किया, तो 1 माइनस 5 क्यों लिख दिया था, 1 माइनस 4/9 होगा। न्यूटन में क्या आ रहा है 2 देन 4 8 16 यानी 2 to the power n, और न्यूटन में आ रहा है 3 to the power n, तो 1 माइनस 2 to the power n डिवाइडेड बाई 3 to the power n। या फिर इस हिसाब से होता लिखते तो भी हम कहते हैं कि 3 to the power n माइनस 2 to the power n डिवाइडेड बाई 3 to the power n, इफेक्टिवली यही वैल्यू आएगा, यानी कि 1 माइनस 2/3 टू द होल पावर n। दिस इज अवर जनरल टर्म। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं 100 टर्म्स का सम क्या होगा, सम ऑफ 100 टर्म्स क्या होगा। वहां तक पहुंचते हैं फिर अपना आंसर निकालते हैं। तो सम ऑफ 100 टर्म्स विल बी 1 माइनस 2/3
प्लस 1 माइनस 2/3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/3 क्यूब और लास्ट टर्म विल बी 1 माइनस 2/3 टू द पावर 100. सो ऑल वंस को एक साथ कर लो. 100 टाइम्स 1 है तो 1 इंटू 100 माइनस 2/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब till 2/3 to the power 100. So this will be 100 minus, तो इस नए सम को मान लेते हैं S1, 100 minus S1, 2/3 plus 2/3 to the power 2 plus 2/3 to the power 3 plus 2/3 to the power 100. तो ये पूरा का पूरा सम हमारा क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 में, तब फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा. एक तरीका है कि 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लें, जीबी बन रहा है क्लियरली, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, सो 2/3 प्लस 2/3 स्क्वायर till 2/3 to the power 100. This sum is equal to S1, और S1 will be equal to A into R to the power n minus 1 upon R minus 1, और 1 minus R to the power n upon 1 minus R. ठीक है, सो A हमारा 2/3 है, फर्स्ट टर्म 2/3 है इंटू 1 माइनस 2/3 टू द पावर n इज इक्वल टू 100, 2/3 टू द पावर 100 अपॉन 1 माइनस 2/3. दिस विल बी 2/3 इंटू न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 टू पावर 100 माइनस 2 टू पावर 100 डिवाइडेड बाई 3 टू पावर 100, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 1/3. तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिकली 3 and 3 विल गेट कैंसल आउट, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस वही रहने देना चाहिए था, 1 माइनस 2/3 टू पावर 100 ही रहने देना चाहिए था. ठीक है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1 में हम 2/3 टू पावर 100 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और 2/3 टू पावर 100 विल बी अ वैल्यू विच इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, जीरो के आसपास होगा, 0.001, मतलब बहुत छोटा वैल्यू होगा, 0.0001 टाइप्स, बहुत छोटा वैल्यू होगा. ठीक है, सो 1 में से एक बहुत स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2, है कि नहीं, बट 2 से छोटा वैल्यू आएगा. अप्रॉक्सीमेटली 2 तो आएगा बट 2 से छोटा वैल्यू आएगा, यानी इफेक्टिवली दिस वैल्यू विल बी समवेयर 1.99 टाइप्स वैल्यू आएगा, है कि नहीं, 1.99 टाइप्स का वैल्यू आएगा. और हमारा सम जो है दैट इज 100 माइनस S1, तो रफली हमारा जो सम आएगा रफली 100 माइनस 1.99 टाइप्स का वैल्यू आएगा. तो वी कैन राइट दिस एज 98.01 टाइप वैल्यू आएगा. और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द सम, यानी कि हमें इंटीग्रल पार्ट लेना है इसका, तो दैट विल बी इक्वल टू 98, दैट विल बी इक्वल टू 98 इन दिस केस. आंसर हमारा 98 आ जाएगा. ओके, या फिर ऐसे कर सकते थे कि डायरेक्टली ये सीरीज का 100 टर्म्स का सम लेने के बजाय, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स हमें लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीजिंग जीपी है, तो हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम ले लेते हैं स्ट्रेट अवे. तो दैट विल बी ए अपॉन 1 माइनस आर, तो दैट इज 2/3 अपॉन 1 माइनस 2/3, तो 2/3 अपॉन 1/3 विच इज इक्वल टू 1. तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमारा 2 आ रहा है, तो 100 टर्म्स का सम लेस देन 2 आएगा ऑब्वियसली. ठीक है, सो 100 टर्म्स का सम यानी कि S1 विल बी लेस देन 2, और अगर S1 लेस देन 2 है और हमें सम चाहिए S 100 टर्म्स का जो हमने ओरिजिनली निकाला था, और दैट वाज 100 माइनस S1, तो अगर S1 लेस देन 2 है, ठीक है, सो माइनस S1 क्या होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन -2. ओके, सो 100 माइनस S1, ऐड कर दो 100 ऑन बोथ साइड्स, तो 100 माइनस S1, दिस विल बी ग्रेटर देन 98. भाई 98 से बड़ा होगा बट 99 से छोटा होगा. ठीक है, सो हमारा जो आंसर होगा अल्टीमेटली 98 आ जाएगा. 98 से बड़ा होगा बट 99 से छोटा होगा, क्योंकि उसके लिए पहले दो टर्म्स ही देख लोगे तो क्लियर तुम्हारा जो सम आ रहा है वो 1 से बड़ा आ रहा है. तो 99 से छोटी वैल्यू है बट 98 से बड़ी वैल्यू है, हेंस आंसर विल बी 98 ओनली. क्योंकि 98 से बड़ा होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, 99 से छोटा भी होना चाहिए, तभी तो आंसर हमारा 98 आएगा. ठीक है, तो ये क्लियर है, क्योंकि 2/3 प्लस 4/9, बस पहले दो टर्म ही देख लोगे तो यही सम हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा है. ठीक है, ऐसे भी सोच सकते थे. ओके, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन. आई बिलीव जो भी बातें मैंने डिस्कस की, जो भी क्वेश्चन जैसे सारे सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे. फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, अपना फीडबैक जरूर कमेंट में देना तुम्हें सेशन कैसा लगा. और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, और साथ में व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.